Hello everyone, welcome to Tarun IS. This is your host and host Shivam Shukla. Today we will cover daily current affairs quiz for 28th July 2023. So let's start with the first question. So the first question says, which of the following statement is incorrect regarding manual scavenging in Indian states? The state of manual scavenging in India. So the first statement says Jammu and Kashmir, Manipur, Telangana, Andhra Pradesh, West Bengal and Jharkhand have a high number of districts yet to declare themselves free of manual scavenging. This means कि अभी ये स्टेट्स के काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स बचे हुए हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग से फ्री होने के लिए. सेकेंड स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग Bihar, Rajasthan and Tamil Nadu have 100% of districts declared free of manual scavenging. So these states have been declared free from manual scavenging. Next, C statement, over 90% of the manual scavengers identified in surveys till 2018 are from scheduled tribe communities. ठीक है, तो within the manual scavengers scheduled tribe communities से सबसे ज़्यादा हैं, that is 90%. This is what C statement says. And the last statement is D. Uttar Pradesh had the highest number of manual scavengers in surveys conducted till 2018, but now nearly 90% districts are free of manual scavenging now. ठीक है, so the incorrect statement in this question is this C, because 90% of the manual scavengers come from the scheduled caste community, यानी SC कम्युनिटी. ठीक है, नॉट फ्रॉम द शेड्यूल्ड ट्राइब्स. दैट्स वाई स्टेटमेंट सी इज रॉन्ग एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी. लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन पार्ट फॉर मोर क्लैरिटी. सो एज यू कैन सी these districts are still prevalent. यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी प्रिवेलेंट है जो स्टेटमेंट में मेंशन थे. ठीक है, बाकी सेकंड स्टेटमेंट जो स्टेट मेंशन थे वहाँ पे 100% फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग हो गया है. थर्ड के केस में इट वर फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज़, नॉट फ्रॉम द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटीज़. ओके, एंड स्टेटमेंट डी इज ऑल्सो करेक्ट because the improvement in Uttar Pradesh situation where 90% of the districts are free from manual scavenging now. ठीक है, this is a news item regarding the death of sanitation workers every 5 days. So the data says 3 sanitation workers die at work every 5 days. That is 97% of the manual scavengers are Dalits. तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे क्लियर हो रहा है. 36% reported violence, 50% have reported untouchability. ठीक है, so this is the, and Uttar Pradesh has the highest number of manual scavenger according to the study in 2018, and now it has improved by 90%. ठीक है, so this is all about question number 2, and these are the important initiatives in the field of manual scavenging. So the first is the bill that was passed, was introduced in Lok Sabha. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन अमेंडमेंट बिल. ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग एक्ट था 2013 का, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लेके आ रहे थे. इट एम्ड टू मैकेनाइज सीवर क्लीनिंग एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ्स. तो इसके पहले कंपनसेशन नहीं मिलता था, उसके बाद एक जो है सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक फैसला आया इन 2014, एंड आफ्टर दैट दिस पर्टिकुलर बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच इज़ स्टिल पेंडिंग इन लोकसभा. नेक्स्ट important legislation is building and maintenance of insanitary latrines act of 2013. ठीक है, it outlaws the construction and maintenance of unsanitary toilets and hiring manual scavengers. यानी जो ओल्ड टाइप की ट्रेडिशनल टॉयलेट होती थी जिसमें देयर वाज नो पिट, गड्ढा नहीं होता था सीवेज के कलेक्शन के लिए घरों में, दैट हैज़ बीन मेड outlawed. ठीक है, दैट हैज़ बीन मेड इलीगल. अब किसी भी घर में कच्ची टॉयलेट नहीं हो सकती, एंड यू कैन नॉट हायर मैनुअल स्कैवेंजर्स टू कैरी द सीवेज ऑन मैनुअली. नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव जॉब्स एंड असिस्टेंस फॉर अफेक्टेड कम्युनिटीज़. ठीक है, तो जो भी कम्युनिटीज़ मैनुअल स्कैवेंजर कम्युनिटी थी, अगर इससे अफेक्ट हुई है तो उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने का और असिस्टेंस प्रोवाइड कराने का प्रोविजन इस पर्टिकुलर एक्ट में है. नेक्स्ट इज SC/ST एक्ट ऑफ 1989, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ के बारे में बात करता है. इट इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन फॉर सैनिटेशन वर्कर्स टू फ्री देम फ्रॉम द डेजिग्नेटेड ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस. दिट इज़ वेरी मीनियल जॉब. दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर एक्ट टॉक्स अबाउट freedom of these particular persons from this particular traditional occupation.
Next important initiative is Safai Mitra Suraksha Challenge. This was launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs to mechanize the sewer cleaning, to employ machinery in place of the manual labor. It ensures proper gear and oxygen टैंक्स फॉर इमरजेंसीज. तो ज़्यादातर डेथ्स एक्चुअली जब सीवेज क्लीनिंग होती है तो वहाँ पे काफ़ी पॉइजनस गैसेस होती हैं, तो उसके रिसाव से सडन डेथ हो जाती है काफ़ी सारे मैनुअल स्कैवेंजर्स की. उसी को प्रमोट करने के लिए इट टॉक्स अबाउट इंश्योरिंग प्रॉपर गियर एंड ऑक्सीजन टैंक्स फॉर इमरजेंसीज. नेक्स्ट, स्वच्छता अभियान ऐप. This app was launched to geotag the insanitary latrines and manual scavengers for replacement and rehabilitation. तो इस ऐप में प्रोविज़न था कि अगर आपको कहीं भी कोई मैनुअल स्कैवेंजर दिख जाए तो आप उसको जियो टैग करो एंड गवर्नमेंट विल टेक इनिशिएटिव टू प्रिवेंट दैट पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम दैट मीनियल जॉब. नेक्स्ट इज नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, दैट इज नमस्ते स्कीम वॉज लॉन्च्ड. It aims to eradicate unsafe sewer and septic tank cleaning practices. Still, इतनी सारी डेथ्स होती हैं, इतने सारे इनिशिएटिव्स होने के बाद भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023. 26 जुलाई को कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं पार्लियामेंट में. उसी में से 2-3 बिल्स पे ये क्वेश्चंस फ्रेम करे हैं. ठीक है, सो दिस यू हैव टू टेल अबाउट व्हाट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर बिल. सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल एम्स टू नॉमिनेट मेंबर्स फ्रॉम स्पेसिफिक कम्युनिटीज़. ठीक है, मेंबर्स नॉमिनेट करना चाहता है टू द J&K असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, फ्रॉम स्पेसिफिक कम्युनिटीज़. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दिस. 2 members from the Kashmiri migrants community, including 1 woman, will be nominated to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir. ठीक है, second statement says about this. Third is 1 member from Pakistan occupied Kashmir, ठीक है, POK, displaced during wars with Pakistan will be nominated to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir. यानी जो POK वाले पार्ट के लोग हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में आके रह रहे हैं, उनमें से भी एक मेंबर नॉमिनेट होगा to the new Assembly of Jammu and Kashmir as per the bill. Next statement is the bill seeks to dilute the political rights of the nominated members and restrict their social and economic development. तो ये बात कर रहा है कि ये बिल जो है it is diluting the political rights and restricting their social and economic development. So definitely by using common sense you can tell that option D is wrong, because this particular bill is getting introduced to encourage further, to increase the political rights, to make them enable them claim the rights, not diluting them. ठीक है, so this is the D is the correct answer and incorrect statement. 1 and 2 and 3 is correct. Okay, next is why D is wrong, because the bill seeks to preserve their political rights, not take away their rights, and promote social and economic development, not dilute or restrict. ठीक है, यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन रेकमेंडेड रिप्रेजेंटेशन बाय वे ऑफ नॉमिनेशन इन रिस्पॉन्स टू द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द दीज कम्युनिटीज़. ठीक है, तो डिलिमिटेशन कमीशन जो फ्रेम हुआ था उसने ये रिकमेंड किया था कि आप ऐसा बिल इंट्रोड्यूस करो, नॉमिनेशन वाली फैसिलिटी अलाउ करो. ठीक है, एंड दीज आर द बिल्स आई एम टॉकिंग अबाउट that have been introduced in the parliament. So one is Jammu and Kashmir reservation bill, next is Jammu and Kashmir reorganization bill, नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल. ठीक है, तो SC/ST अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता था जम्मू कश्मीर में, वो भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है थ्रू दिस बिल. नेक्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑल्सो, दिस पर्टिकुलर ऑर्डर इज ऑल्सो गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल of 2023 is getting introduced. And next is mines and minerals amendment bill. ये 5 bills 26 जुलाई को इंट्रोड्यूस किए गए थे. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is regarding that bill only, registration of births and deaths amendment bill. ठीक है, what is incorrect regarding this? ठीक है, I am covering the incorrect part because so that most of the provisions of the bill gets covered through this question. So the first statement is registration of births and deaths amendment bill aims to create all encompassing digital birth certificates for various official purposes. ठीक है, तो जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट्स बनते हैं उनको डिजिटली भी बनाया जा सके, इस पर्टिकुलर प्रोविजन को इनेबल करने के लिए ये पर्टिकुलर बिल लाया जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इज
नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेट विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर बर्थ्स एंड डेथ्स ऑन सेंटर्स सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल एंड शेयर द डेटा विद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो बेसिकली उसको टेक्निकल ओरिएंटेड बना रहे हैं, मैकेनाइज कर रहे हैं, ऑटोमेट कर रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। अभी तक आपको फिजिकल कॉपी मिलती है, बट दे विल ऑल्सो ट्राई टू प्रोड्यूस डिजिटल कॉपीज़। थर्ड स्टेटमेंट, द डेटाबेस विल ऑल्सो अपडेट द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राशन कार्ड्स एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो तीनों चीज़ों से इंटीग्रेट करने की बात चल रही है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्स, राशन कार्ड्स एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड से भी इसको लिंक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज बिल अमेंड्स द 24 सेक्शंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड आरबीडी एक्ट ऑफ 1969, ठीक है, जो प्रीवियस एक्ट था 1969 वाला, उसमें से 24 सेक्शंस को अमेंड किया जा रहा है, मेकिंग इट द फर्स्ट अमेंडमेंट इन 54 ईयर्स, ठीक है। तो 54 सालों में ये पहला अमेंडमेंट हो रहा है टू दिस पर्टिकुलर एक्ट एंड 24 सेक्शन आर गेटिंग amended. So the correct answer to this question is D and incorrect option is D only. And what is incorrect in this? 14 section are getting amended, not the 24 sections. Rest of the information is correct. ठीक है. So as per the description, D is the correct answer and statement 4 is incorrect because 14 sections of this act are getting amended, not the 24. Okay. So let's see the next question. With reference to the parliamentary motions in the Indian Parliament, ठीक है, consider the following statements. Why this question? Because recently अभी ही कल यानी 26th of July को जो है opposition, that is Congress party has brought a no confidence motion against the PM in power right now to give a statement on Manipur issue, ठीक है. So I have chosen this particular question. This is regarding the important parliamentary motion that can be passed in Indian Parliament. So the first statement says a no confidence motion is moved to express approval of the ruling government's policies. तो ruling government की policy को approve करने के लिए उसके हम we are approving your policy, उसको लाने के लिए no confidence motion लाया जाता है, उसको approve करने के लिए. नेक्स्ट इज अ सेंचर मोशन रिजल्ट्स इन द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम पावर. अगर एक सेंचर मोशन आ जाता है तो गवर्नमेंट इन पावर या पार्टी इन पावर जो भी है उसको रिज़ाइन करना होता है. दिस इज़ व्हाट सेकंड स्टेटमेंट सेज. थर्ड स्टेटमेंट, एन एडजर्नमेंट मोशन इज़ यूज्ड फॉर अर्जेंट पब्लिक मैटर्स रिक्वायरिंग इमीडिएट अटेंशन, ठीक है. तो एडजर्नमेंट मोशन कब लेके आते हैं? जब अर्जेंट पब्लिक मैटर्स की हियरिंग होना हो, जो जिसमें इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत हो. हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, ये बताना है आपको. सो एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ऑप्शन नंबर 1 इज़ रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 2 इज़ ऑल्सो रॉन्ग. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज C, the A, that is only one. Only adjournment motion is correct. Let's see the description part to get more clarity on this. So statement 1 is not correct because a no confidence motion is used to test the majority support of the ruling government, ठीक है, कि गवर्नमेंट एक्चुअली सच में उसका पावर में बने रहने लायक है या नहीं, मेजोरिटी है या नहीं उसके पास, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है. एज द नेम सजेस्ट कि वी हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट एंड योर पॉलिसीज एंड वी आर नॉट अप्रूविंग, वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग अप्रूवल. नेम ऑल्सो सजेस्ट. तो आप कॉमन सेंस का भी यूज़ करके भी पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है. नेक्स्ट अबाउट सेंचर मोशन, इट इज़ अ मोशन ऑफ डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी, डिसअप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट एक्शंस एंड पॉलिसीज़, कि भाई आप जो पॉलिसी लेके आए हो या जो आप एक्शन कर रहे हो दैट इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय द अपोजिशन गवर्नमेंट, या जो भी दिस सेंसर मोशन जो भी लेके आ रहा है, दे आर डिसअप्रूविंग द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़. To express this particular emotion, this particular motion is brought into the parliament, but it is less severe and does not lead to the government of the removal of the government. यानी सेंचर मोशन से सिर्फ डिसअप्रूवल एक्सप्रेस किया जाता है, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन से, ठीक है. और इसके अलावा एडजर्नमेंट मोशन तो ठीक है, बिल्कुल अर्जेंट पब्लिक मैटर्स की हियरिंग के लिए लिया जाता है, इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत होती है जिसमें, एंड इट इज़ ऑनगोइंग बिजनेस इज सस्पेंडेड, पहले जो इंपॉर्टेंट इशू है उस पर बात होती है. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया था, टू एक्सप्रेस द अप्रूवल ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़, इसके लिए लाया जाता है कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है. if any political party agrees with the policies of the government, then they can bring this confidence motion, ठीक है.
So let's see the last question for the day. With reference to the Enforcement Directorate, consider the following statements. ED is responsible for enforcing economic laws and regulating economic activities in India. Second statement says it primarily focuses on combating money laundering and foreign exchange violations. Third statement is it is an independent agency that does not coordinate with other agencies like CBI or FATF. ठीक है, तो by using common sense only you will be able to answer this question. Statement 3 is definitely wrong, क्योंकि इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरह काम नहीं करती है. इट वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विद द CBI एंड FATF एंड अदर एजेंसीज. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली 2, दैट इज B. Let's see the description part for more clarity. Why I chose this question is because for the two reasons. One, there is one PIL has been filed in the Supreme Court regarding the extension of the services to the अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेजेंट ऑनगोइंग डायरेक्टर. ठीक है, तो उसके अगेंस्ट एक पिटिशन फाइल किया गया है कि क्यों एक्सटेंड करते जा रहे हो बार बार उनका एक्सटेंशन, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सीम्स टू बी डिफेंडिंग हिज एक्सटेंशन. उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ आइटम आया था, इसीलिए आई हैव चोजन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो रिगार्डिंग दिस, ED इज एन इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड रेगुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं और जो भी इकोनॉमिक लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके इन्फोर्समेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ED. और उसका प्राइमरी फोकस क्या है? टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस, एंड इट इन्वेस्टिगेट्स एंड इन्फोर्सेज द प्रोविजंस अंडर द FEMA एक्ट, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एंड ऑल्सो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA. ठीक है, तो दो कीवर्ड्स हो गए, कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस. ठीक है, and it works in coordination with other agencies like CBI and FATF at the international level to combat economic offenses and ensure financial integrity. Financial integrity बनी रहे, इसको ensure करता है. It is an independent agency and it collaborates with other agencies to further to address the financial crimes and illicit financial activities. तो जहाँ पे भी PMLA का एंगल बनता है या FEMA का एंगल बनता है, तो वैसे तो CBI भी सीधे एक्शन ले सकती है, बट जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या फाइनेंशियल इंटीग्रिटी वाली बात आ जाती है तो डेफिनेटली ED इंटरवीन करता है. ठीक है, एंड देयर इज दिस वन अनदर न्यूज़ आइटम रिगार्डिंग द ED's पावर अंडर PMLA, के कितना पावर उसको है. तो आप बस इतना छोटा सा चीज़ें ध्यान रखो. सेक्शन 3 डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो जहाँ भी मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल आएगा वहाँ पे ED कैन इंटरवीन. सेक्शन 24 ऑफ PMLA दैट टॉक्स अबाउट द रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ. ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज हेयर विद द जो भी चार्ज जिस पे है, जो भी जो भी अलेज्ड पर्सन है जिसके ऊपर चार्ज लगा है. एंड सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, तो यानी वो जिसके अगेंस्ट चार्ज प्रूव होता है उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकती है ED. ठीक है, स्ट्रिंजेंट इन ग्रांटिंग बेल अंडर द एक्ट इज़ लीगल एंड नॉट आर्बिट्रेरी. तो इस पर्टिकुलर एक्ट में अगर मतलब बेल आसानी से नहीं मिलती है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है, एंड इट इज़ परफेक्टली लीगल नॉट आर्बिट्रेरी. ठीक है, इसके अलावा इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर ED टू गिव एन एनफोर्समेंट केस FIR एज लाइज विद द नॉर्मल पुलिस इन केस ऑफ FIR. ठीक है, तो जो नॉर्मल पुलिस होती है उसको FIR रजिस्टर होने से पहले दे कैन नॉट इन्वेस्टिगेट एनीथिंग. ठीक है, FIR रजिस्टर होना जरूरी है, देन ओनली दे कैन टेक एक्शन. ठीक है, बट इन केस ऑफ ED दे आर नॉट बाउंड विद सच रिक्वायरमेंट्स. उनको इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी ECIR फाइल करना ज़रूरी नहीं है, रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं है. दे कैन टेक एक्शन बेस्ड ऑन डाउट ऑल्सो. ठीक है, ऑल्सो द स्टेटमेंट्स मेड टू ED आर कंसिडर्ड एडमिसिबल इन द कोर्ट. नॉर्मल केसेस में जब पुलिस को आप अपना स्टेटमेंट देते हो तो इट इज़ नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट, बट ED के केस में इट इज़ एडमिसिबल इन कोर्ट. थर्ड इज प्रोविजन ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अक्यूज्ड एज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बैलेंसेस द इंटरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड एंड द स्टेट. ठीक है, तो जो अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी वाला केस है तो यहाँ पे इट बैलेंसेज द इंटरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड एज वेल एज द स्टेट. ठीक है, द क्वेश्चन ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द PMLA अमेंडमेंट्स थ्रू द मनी बिल रूट इज टू बी डिसाइडेड बाय द लार्जर बेंच. ठीक है, एक तो कैन दे अरेस्ट अ कैबिनेट मिनिस्टर इन पावर, क्या ED को ये पावर है या नहीं, इस पर डिसाइड करेगा अपनी सुप्रीम कोर्ट. इसके अलावा भी इनेक्टमेंट ऑफ द PMLA अमेंडमेंट्स के भाई कितना प्रोविजंस लागू होंगे PMLA अमेंडमेंट के टू द ED, इट ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड बाय द लार्जर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट
today's questions. Hope you are liking our initiatives and our choice of questions. You can share your feedback in the comment section, and you can also follow other initiatives of Tarun IAS channel, and you can like, share and subscribe us, and you can also follow us on Instagram, Facebook, Twitter and Telegram. To get the PDF of this particular PPT, you can reach out to us on Telegram channel. Thank you and have a nice day.